Hello students, so today we are going to start our new topic, that is cardiac cycle. Some of the part of the conducting system of the part we have left yesterday, so वो part भी हम इसमें cover करेंगे. So in the cardiac cycle, अगर हम normally अगर बात करते हैं, so we can say that the cardiac cycle is divided into two, that is contraction and relaxation. हम बोल सकते हैं कि it is a combination of contraction and relaxation uh, of the heart. It is called as the cardiac cycle. Yes, so the in the scientific language we can say the contraction is the called as the systole and relaxation is called as a diastole. And normally the cardiac cycle is of 0.8 second. It is less than 1 minute. आप बोल सकते हो कितना कम सेकेंड में हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. यस, सो अगर हम नॉर्मली अगर हम बात करें, सो एट जो हमारा नॉर्मल जब हार्ट जब काम करता है, सो इट वर्क एज उसमें सारा ब्लड जो आता है एट्रियम में एंड इट गोज इनटू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम दिस वेंट्रिकल इट गोज टू द पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. यस, अगर हम राइट साइड की अगर बात करें, और वहीं अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो इट गोज़ इनटू द aorta and from this aorta it distributed to all over the body. Yes, so the atrial systole you call as a atrial contraction. हम उसको atrial systole की अगर बात करें, atrium की बात करें, तो अगर atrial systole लिखा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, atrium जो atrium है वो क्या हो रहा है, contract हो रहा है. एंड एट्रियल डायस्टॉल मीन्स जो एट्रियम है वो क्या हो रहा है, इन द रिलैक्स कंडीशन में वो वर्क कर रहा है. यस, सो इन नॉर्मल कंडीशन हमारा जो हार्ट है इट वर्क की दिस इज राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल. जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इट कम फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड inferior vena cava. It comes into the right atrium. Yes, and from this right atrium it goes into the right ventricles, and from this right ventricle with the help of the this pulmonary artery it goes into the lungs, and from the lungs it is oxygenated, and this oxygenated blood come with these pulmonary veins, and there are the four openings of these veins in the left atrium. Yes, from this left atrium it goes into the left ventricle with the walls. यहाँ पे walls present रहते हैं. These are the, ये राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल रहता है, लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल प्रेजेंट रहता है. यस, सो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, एंड फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल with the help of the aorta it will distributed to all over the body. So it is a normal function. Yes, तो हमने जब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की जब हमने बात की थी तो हमने यहाँ देखा था कि देर इज़ ए ऐसे नोड. यहाँ पे क्या रहता है, ऐसे नोड रहेगा. दिस ऐसे नोड इट इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. इट स्टार्ट द इम्पल्स, so this impulse will goes to the AV node. This AV node it is present on this slightly on the left side. Yes, and उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से this will goes to the atrioventricular bundle sheet. यहाँ पे एक तरह से आप जो डायग्राम में हमने लास्ट डायग्राम में देखा था, एक शीट जैसी थी वो, that is called as the bundle of His. Yes, that bundle of His again it is distributed into the right and left bundle हमने देखा था. Yes, so this right and left branches it is further divided into Purkinje fibers. Yes, so this is the conducting system. So once we see कल का हम डायग्राम फिर से एक बार देख लेते हैं आपको और क्लियर करने के लिए. यस, सो दिस इज़ आवर यस्टरडेज डायग्राम. सो यहाँ पे हमने देखा था कि ऐसे नोड से है जो पेसमेकर कहलाता है. यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट होता है. फ्रॉम दिस द इम्पल्स विल गोज एट the AV node. From this AV node it will goes to this arioventricular bundle, that is the bundle of Hayes, and from this it is goes to this right and left bundles branches, and from this
it is goes into the Purkinje fibers. These are the small fibers, yes, thin fibers. तो these are the this is how the conducting system, कैसे वो impulse जो है एक ऐसे नोड से हमारा पूरे हार्ट में ट्रैवल करता है. सो दैट इज पार्ट वी हैव लेफ्ट विद रीडिंग. हमारा सिर्फ रह गया था लास्ट कुछ पैराग्राफ का. यस, सो दैट रीडिंग, उस रीडिंग में भी हम अगर देखें तो यही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इम्पल्स ऐसे नोड से कहाँ पे it will goes into AV node. From this it goes into the bundle of His, and from this bundle of His it goes into the Purkinje fibers. Yes, this is how the impulse is spread into the heart. Yes, now we are going to see how the cardiac cycle will occur. Yes, सो एट्रियम जब नॉर्मल कंडीशन में इट इज़ इन द रिलैक्स पोजीशन. सो क्या हो रहा है वहाँ पे सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है हमारे एट्रियम में, राइट एट्रियम में आ रहा है. यस, यहाँ पे भी अगर हम लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है. यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट अ टाइम बोथ द एट्रियम इज फिल. दोनों एट्रियम क्या हो रहे हैं, फुल फिल हो रहे हैं विद द ब्लड. यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. यस, अब क्या होगा, इट विल इम्पल्स. ये जब इसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट प्रेशर विल रिजल्ट इन द it exert pressure on the wall, and in response to this pressure the SA node, जो यहाँ पे SA node present था, this SA node get excited and it generates a cardiac impulse. Okay, and due to this the cardiac muscles in the atrial wall causing contraction. Yes, उससे क्या होगा, उसमें contraction होगा, that contraction you called as the atrial systole. कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस एट्रियम, और बिकॉज ऑफ दैट इट विल ओपन दिस वॉल्स. और ये जो वॉल्स है, ट्राइकस्पिड वॉल्स है, ये ओपन हो जाएंगे. यहाँ पे मिट्रल वॉल जो है ये ओपन हो जाएगा, एंड इट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ, जितना ब्लड रहेगा वो सारा एट्रियम से किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में वो ब्लड आ जाएगा. यस, अब जब यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, एट्रियम का प्रेशर, तो इट इज़ नेसेसरी कि ये जो वॉल्स थे, द वॉल एट्रियम के जो वॉल रहेंगे, दैट इज़ यूबेशियन एंड थेबेशियन जो वॉल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. क्लोज होने के कारण क्या, इट हेल्प कि अगर यहाँ पे जब प्रेशर लो हो चुका है, सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में जा चुका है, तो इट इज़ कि हो सकता है कि जो और उसमें से क्या हो, ब्लड आ जाए, यहाँ पे भर जाए, तो इसको इसके उसको रोकने के लिए वो वॉल्स क्लोज हो जाएंगे. यस, एंड सारा ब्लड क्या हो जाएगा, पूरा वेंट्रिकल्स में आ जाएगा. नाउ अगर हम जब बात कर रहे थे कि एट्रियम में सारा अगर ब्लड था, एट दैट टाइम एट्रियम कैसा था, इट इज़ इन द सिस्टोलिक कंडीशन, एंड वेंट्रिकल्स कैसा था, इट इज़ इन द डायस्टोलिक कंडीशन. यस, रिलैक्स कंडीशन में थे. पहले वेंट्रिकल्स कैसे थे, रिलैक्स कंडीशन में थे. वंस अगर सारा जब ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में आ गया है, नाउ धीरे धीरे क्या होते जाएगा, जो एट्रियम है इट गोज़ इनटू द डायस्टोलिक कंडीशन. यस, धीरे धीरे ये रिलैक्स होते जाएंगे, एंड द वेंट्रिकल इट गोज़ इनटू द सिस्टोलिक कंडीशन. यस, सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले क्या देखा, दैट इज़ एट्रियम सिस्टोल. एट्रियम सिस्टोल की अगर बात करें तो क्या हुआ, सबसे पहले कि सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया. वैसे ही यहाँ पे पल्मोनरी वेन से सारा ब्लड कहाँ पे आया है, लेफ्ट एट्रियम में आया है. इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दिस एट्रियम, एंड दिस प्रेशर विल ओपन्स द वॉल, दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल एंड द मिट्रल वॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ जितना भी ब्लड था इट विल गोज इन टू द वेंट्रिकल्स. यस, और यहाँ पे जो वॉल्स थे, दैट इज़ द यूथेशियन एंड थेवेशियन, जो यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, दे विल क्लोज, बिकॉज कि ब्लैक जो ब्लड और जो आ रहा है वो वहाँ पे ना आए. यस, सो एट दैट ये दिस इज़ द कंडीशन, आप बोल सकते हैं इट इज़ द
एट्रियल सिस्टोल कंडीशन, मतलब हमारा जो एट्रियम है वो क्या हो गया है, सिस्टोल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एंड एट दैट टाइम नॉर्मल जो सिस्टोलिक जब होता है, इट टेक्स अबाउट 0.1 सेकेंड लिए लेता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, और बाकी टाइम में इट इज इन द रिलैक्स कंडीशन। सो अगर हम बात करेंगे तो एट्रियम जो है, जो एट्रियम सिस्टोल जो हो रहा है, इट टेक्स 0.1 सेकेंड ये ले रहा है। यस, अब हमारा सारा ब्लड कहाँ हो गया है, वेंट्रिकल्स में आ गया। वंस द ब्लड कम इनटू द वेंट्रिकल्स, अगर हम कंपेयर करते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स की वॉल्स को, तो जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है, इट इज़ मोर थिकन दैट दी और एट्रियम, ये उससे ज़्यादा थिक होती है। यस, और इसमें भी अगर हम लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होती है, बिकॉज इट इज़, क्योंकि सारा ब्लड यहाँ से उसे ऑर्टा से सारे बॉडी में फ्लो करना पड़ता है, इसीलिए इट इज़ द वॉल इज़ मोर थिकन दैन द राइट वेंट्रिकल्स। ओके, अब क्या हुआ, सारे जो ब्लड था वो वेंट्रिकल्स में आ गया है। नाउ इट इज़ नेसेसरी कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्स थे, मिट्रल वॉल थे, ये सारे वॉल्स क्या, दोनों वॉल्स क्या होने चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ताकि ये हम बैक फ्लो ऑफ ब्लड को एट्रियम में जाने से रोके। यस, सो वंस द होल ब्लड, पूरा ब्लड अगर एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ गया है, नाउ ये जो वॉल्स थे ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। दैट prevents backflow of blood into the atrium। अब जब ये वॉल्व क्लोज हो गए हैं, नाउ द वेंट्रिकल, इसका क्या होते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, एंड विद दिस प्रेशर क्या होगा, जो यहाँ के जो पल्मोनरी आर्टरी, दिस पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा में भी जो वॉल्स होते हैं, दैट वॉल दैट इज कॉल्ड एज द सेमी लूनर वॉल्स, दे आर ओपन, दे आर ओपन। अब क्योंकि ये वॉल्स बंद हो गए हैं, तो दिस क्रिएट प्रेशर ऑन दिस pulmonary artery and this aorta, and these seminary walls are open। Okay, so these walls are open and it is ready to carry ब्लड, यहाँ से वो ब्लड लेके जाने के लिए तैयार है। यस, अब ये तो हो गया कि दिस वॉल क्लोज हुआ, एंड दिस वॉल्स जो थे वो, आपने देखा कि दिस एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्स और वी कॉल एज अ ट्राइकस्पिड वॉल, और यहाँ पे जो मिट्रल वॉल्स है, दीज आर क्लोज, ये क्लोज हो गया है। नाउ क्लोजिंग मेक अ साउंड, जब ये वॉल क्लोज होते हैं, जब ये वॉल क्लोज होते हैं, उसके कारण एक साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट में, दैट इज़ द फर्स्ट साउंड, और दैट साउंड यू कॉल्ड एज द लब, दैट साउंड इज कॉल्ड एज द लब, दैट साउंड इज कॉल्ड एज द लब। और वहीं पे जब प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है, और ये प्रेशर के कारण जब ये pulmonary artery and aorta के जब wall that is called as the semilunar walls, that is the semilunar walls, these walls अगर जब ये open होते हैं, that sound sorry, अब जब सारा ब्लड यहाँ पे आ गया है, वेंट्रिकल्स में आ गया है, नाउ द walls are open to carry this blood। once the blood is goes to this pulmonary artery, once the blood go from this aorta, from this left ventricles, this will decrease the pressure। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, दिस वॉल्व आर क्लोज, उसको ये क्लोज हो जाएंगे, ताकि अगर यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो मे बी कि ये जो आर्टरी और ऑर्टा में जो ब्लड गया है ये बैकफ्लो हो सकता है। सो वो जब सारा ब्लड यहाँ से निकल जाएगा, दैन इट द वॉल आर क्लोज, और जब ये वॉल क्लोज हो जाते हैं, दैट प्रोड्यूस अ साउंड that is called as the dub sound, that is called as the dub sound। yes, the second sound is the dub sound। एंड सो यहाँ पे आप देखोगे कि जब दिस एट्री वेंट्रिकुलर अपर्चर या एट्री वेंट्रिकुलर वॉल जब बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल जब बंद होते हैं, देन इट प्रोड्यूस अ फर्स्ट साउंड दैट इज कॉल्ड एज द लब साउंड। और इसके बाद जब दिस सेमील्यूनर वॉल्स जब बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, देन इट प्रोड्यूस अ सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज कॉल्ड एज द डब साउंड। यस, सो अब इनमें अब हम देखेंगे कि
व्हाट आर दी नॉर्मल, ये सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस हो गई सारी, ठीक है। अब जो जब सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में था तो एट्रियम इज इन द रिलैक्स पोजीशन, यस। एट्रियम कैसी थी? इन द रिलैक्स पोजीशन। सो एट दैट टाइम इट इज द कितना टाइम तक वो रिलैक्स थी? एट्रियम आर इन द रिलैक्स पोजीशन, दैट इज इन द डायस्टोल पोजीशन। इट इज फॉर द 0.3 सेकेंड, इट इज फॉर द 0. atrial diastole, it is for 0.3 सेकेंड, ओके। अब 0.3 सेकेंड के लिए ये रिलैक्स थी, कौन? एट्रियम, यस। अब नॉर्मल अभी तक क्या हुआ कि राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया। ये जब वॉल्व थे ये ओपन थे, सारा ब्लड यहाँ पे आ गया। जो एट्रियम था वो क्या हो गया? अभी हमारा उस समय रिलैक्स हो गया, इट इज़ इन द रिलैक्स पोजीशन, सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया। वंस द ब्लड कम इनटू द वेंट्रिकल पोजीशन, ये जितने वॉल्स थे ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। एट द क्लोजिंग टाइम दे प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज कॉल्ड एज द लब साउंड, यस, दैट इज द लब साउंड। वंस द यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ने के बाद इट विल गोज टू दिस पल्मोनरी आर्टरीज and from the aorta it goes into the different parts of the body. Once the blood goes from this ventricle part, so it decrease the pressure of these ventricles, so it might be possible कि जो blood है वो back flow हो सके। So to prevent that position, उस चीज़ को prevent करने के लिए this wall that is called as the semilunar walls ये क्या हो जाएंगे? close हो जाएंगे। एट द क्लोजिंग साउंड, ये जब एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, डैट साउंड यू कॉल्ड एज अ डब साउंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यस। अब ये जो राइट एट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन थी वो कितना सेकंड ले रहा है? इट टेक्स 0.1 सेकेंड। और जब ये रिलैक्स पोजीशन में था, यस, सारा ब्लड अब यहाँ वेंट्रिकल से निकल चुका है, यस, सारा ब्लड क्या हुआ है? वेंट्रिकल से निकल चुका है। एंड एट दैट टाइम यहाँ पे कितना सेकेंड? अब ये जो आप बोल सकते हैं एट्रियम जो है इट इज़ इन द रिलैक्स पोजीशन, नाउ इट इज़ ऑफ 0.3 सेकेंड, यस। ये क्लियर हुआ। अब सारा जो ब्लड है वेंट्रिकल से निकल चुका है। सो एट दैट टाइम क्या हो रहा है? वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स पोजीशन में है एंड एट्रियम भी क्या है? रिलैक्स पोजीशन में है। सो एट दैट टाइम all the four chambers of the heart they are in the relaxed position and it is called as the joint diastole, it is called as the joint diastole। मतलब सारे जो प्रोसेस है, सारे जो चैम्बर्स है, इट इज़ इन द रिलैक्स पोजीशन, क्योंकि सारा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा से बाहर निकल गया है। नाउ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, बोथ द एट्रियम एंड बोथ द वेंट्रिकल, दे आर इन द रिलैक्स पोजीशन, दैट पोजीशन यू कॉल्ड एज द जॉइंट दिस डायस्टोल एंड इट इज़ फॉर 0.4 सेकेंड। सो अगर हम बात करते हैं कि जो सिस्टोल था वो सॉरी जो एट्रियम था वो कितने बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितने टाइम के लिए? सो द एट्रियम सिस्टोल इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए हुआ, बट इट इज़ रिलैक्स कितने टाइम के लिए हुआ? वो 0.3 सेकेंड। एंड यहाँ पे जॉइंट है दोनों का, मतलब यहाँ पे एट्रियम भी है वो डायस्टॉल हुआ है, मतलब रिलैक्स हुआ है। एंड हमारा जो वेंट्रिकल्स था, वेंट्रिकल डायस्टॉल, वो भी क्या हुआ है? रिलैक्स हुआ है, यस। सो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो जो एट्रियम है वो एक ही 0.1 सेकेंड के लिए ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी टाइम वो कैसा रहता है? रिलैक्स पोजीशन में रहता है, यस। और जब अगर वेंट्रिकल्स की बात करें, वेंट्रिकल्स में इट टेक्स वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट टेक्स 0.3 सेकेंड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, या आप बोल सकते हैं सिस्टोलिक कंडीशन उसकी कितने टाइम के लिए रहती है? 0.3 सेकेंड के लिए उसकी सिस्टोलिक कंडीशन रहती है। एंड ये डायस्टोलिक कंडीशन में कितने टाइम के लिए रहता है? एक तो यहाँ पे 0.4 जब
पूरा जॉइंट डिस्टॉल डायस्टॉल रहता है, मतलब जब सारे चैम्बर्स रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं एट दैट टाइम कितना टाइम वो वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में रहता है, इट इज़ ऑफ द 0.4 सेकेंड, इट इज़ इन द रिलैक्स कंडीशन। और जब हम अगर बात करेंगे कि जब हमारा एट्रियम जब वो सिस्टॉल होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एट दैट टाइम, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है एट दैट टाइम वेंट्रिकल्स जो है वो डायस्टोलिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ 0.1 सेकेंड यहाँ पे ऐड हो जाता है हमारा। सो इन दिस वे अगर हम वो सारा कैलकुलेशन करते हैं, सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि द आर टी एल सिस्टॉल सिर्फ कितने टाइम के लिए रहता है, इट इज़ फॉर 0.1 सेकेंड के लिए। और आर टी एल डायस्टॉल मीन्स वो रिलैक्स पोजीशन में कितने टाइम के लिए रहता है, 0.7 सेकेंड के लिए, इट इज़ इन द रिलैक्स पोजीशन। सो द पूरा अगर कार्डियक साइकिल में अगर हम देखें तो इट इज़ 0.1 सेकेंड के लिए ही सिर्फ उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाकी टाइम वो कैसा रहता है, रिलैक्स पोजीशन में रहता है। वही अगर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें, सो इट इज़ ऑफ 0.3 सेकेंड के लिए ही सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब सारा प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स में बढ़ जाता है, दैट टू रिलीज दैट प्रेशर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट दैट कॉन्ट्रैक्शन सारा जो ब्लड है इट गोज़ टू द पल्मोनरी आर्टरीज एंड फ्रॉम दी और aorta से चला जाता है। तो एट दैट टाइम इट इज़ ऑफ 0.3 सेकेंड, यस। और उसके बाद ये रिलैक्स पोजीशन में हो जाता है। सो एट दैट रिलैक्स पोजीशन इट इज़ रिमेन 0.5 सेकेंड के लिए। उसमें से अगर हम बात करें, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे सारे हमारे जो चैम्बर्स कैसे हो जाते हैं, इन द रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। एट दैट रिलैक्स पोजीशन में जब रहेगा, दैट इट इज़ कॉल्ड एज द जॉइंट डायस्टॉल और यू कॉल्ड एज अ कंप्लीट डायस्टॉल, यस। सो it is for the 0.4 second, it is for the 0.4 second, okay। So this is how the uh, एक कार्डियक साइकिल आपकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से ये चलती है। सो ये टाइमिंग को हम और अच्छे से डायग्राम से स्टडी कर। सो फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट यू ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे क्या हुआ है, 0.1 सेकेंड के लिए ही क्या हुआ है यहाँ पे, आर्टियल सिस्टोल जो था ये हुआ है, यस। फ्रॉम दिस देर इज़ अ वेंट्रिकल सिस्टॉल। वेंट्रिकल सिस्टॉल कितने टाइम के लिए हुआ है, इट इज़ फॉर द 0.3 सेकेंड, यस। 0.3 सेकेंड, 1 2 3, इट इज़ फॉर 0.3 सेकेंड जो वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन की सॉरी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसीजर हुई है, दैट इज़ द वेंट्रिकल सिस्टॉल। उसके बाद एक पोजीशन ऐसी आती है एट दैट टाइम वेंट्रिकल क्या होता है, डायस्टॉल होता है, यस। वेंट्रिकल डायस्टॉल होता है मतलब वो रिलैक्स पोजीशन में आता है। रिलैक्स पोजीशन में आता है एट दैट टाइम हमारा एट्रियम तो ऑलरेडी वो रिलैक्स पोजीशन में रहता है। सो दिस जो ब्लू कलर को आपका दिख रहा है, दैट यू कॉल्ड एज अ जॉइंट डिस्टॉल डायस्टॉल, क्योंकि एट दैट टाइम हमारा जो एट्रियम था वो भी क्या था, रिलैक्स पोजीशन में था। नाउ द वेंट्रिकल ऑल्सो इन द रिलैक्स पोजीशन। तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है एट दैट टाइम, दैट इज़ 0.4 सेकेंड के लिए हमारा वेंट्रिकल एंड एट्रियम दोनों इट इज़ इन द relaxed position, that is the diastolic condition, 1 2 3 4, 0.4 second। after this धीरे धीरे जो है वापस से क्या हो रहा है, हम जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल अगेन इट गोज़ टू ये डायस्टोलिक कंडीशन लेगा और धीरे धीरे जो ए एस दैट इज़ द एट्रियम सिस्टोल वो धीरे धीरे फिर से उसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। लाइकवाइज ये प्रोसेस कंटिन्यू एक चलती रहेगी वन बाय वन, दैट इज़ वी कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। इट इज़ ऑफ 0.8 सेकेंड। ये पूरा 0.8 सेकेंड में ये पूरी साइकिल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। दैट साइकिल यू कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल, यस। सो द राइट साइड ऑफ द heart contains the oxygenated
and left contain deoxygenated, and the left contain the oxygenated blood. The total volume of blood pumped during one ventricular systole is called the stroke volume, and it is approximately 70 ml. So एक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो निकल रहा है वन एक लेफ्ट वेंट्रिकल से, दैट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 ml, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. सो व्हाट इज़ द कार्डिक इनपुट output? So the cardiac output is the total of SV and HR. That is SV अगर हम बोलेंगे तो it is stroke volume, that is the 70 ml, or HR is the heart rate, it is 72 in average. Okay, so that is the 5 liter of blood per minute we are एक्सपोर्टिंग, या हम पूरा हमारा जो हार्ट है वो एक्सपोर्ट कर रहा है टू ऑल ओवर द बॉडी. तो दिस इज हाउ अवर कार्डियक साइकिल इज गोइंग ऑन. यस, सो here we completed our cardiac cycle. So in the next class we will continue with the other topics. So take care, goodbye.